Good evening, everybody. You all can hear my voice. Just please confirm me on chat that you can hear my voice. You can see the screen. Stock Edge Club presents trading with chart pattern. This screen you can see and you can hear my voice. Please confirm it. Okay, thank you for confirmation. Thank you, Rajan Kumar ji. Thank you, Ashok ji. Thank you, Gauri Shankar ji, for confirming. And thank you, everybody, for confirming. Okay. So welcome all to the session of chart patterns. My name is Amar Mirza. So I'll be taking this session. Okay. So before going to the session, I would like to know how many of you are attending this session for the first time and how many have already attended the session and repeating it for the second or third time. Just I want to know so that accordingly I can take the flow. Okay, Ashish ji for the first time, Bhupesh ji for the first time. Abhinav ji, first time. I am new to chart. Please explain accordingly. Okay, Gauri ji. Okay, already attended. Raj Kumar ji, second time. Second time, Swapnil ji. Nishi Chaudhary ji, first time. Chandan ji, first time. Abhijit ji, first time. Arvind ji, first time. So I can see most of the people, Bhavin ji also for the first time, are attending this session for the first time. Mahendra ji for the second time. Okay. Vishwajit Vyas ji for the first time. Okay. So most of the people are like 90% I can see of the participant are doing it for the first time. Okay. Some are doing for the second time. Bhupendra ji and Devabrata ji is also doing for the second time. Rohit ji also doing for the second time. Okay. No issues. I'll start from the basics so that those who are attending for the first time, they do not miss anything. Okay. And from the basics, they have the grip of the, understanding of the whole matter and have the grip on it. Okay. And those who are attending for the second or third time, okay, for them it will be a revision. Okay. And in between, if you have any doubts, you can write it in chat. And after explaining, I'll take your questions and clear your doubts. Okay. So, so this chart patterns, what is chart patterns? Okay. So these chart patterns is nothing. It is just a graphical representation of price. Okay. It represents the price. Whatever has happened in the market or in the stock, it is representing in a visual format. Okay. We can visualize, we can see it actually. What had happened throughout the day. If you are using intraday chart or if you are doing EOD chart, we can see what has happened for the past 1 month, 2 months, 3 months, or even up to years. We can see what has happened and what has been the trend of the chart. Okay. So chart is a graphical representation of price and as well as volume. It also tells about the volume. Okay. So this chart, okay, Mushraq ji wants me Hindi, Kuldeep ji also want me to speak in Hindi. ठीक है, तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है, और जिनको हिंदी में नहीं समझ में आएगा तो मैं उसके लिए इंग्लिश में रिपीट कर दूंगा. Okay, most of the audience ज्यादातर चाहते हैं कि मैं हिंदी में बोलूं. ठीक है, तो मैं हिंदी में बोलता हूँ. सुब्रमण्यम जी इंग्लिश. Okay. So Hindi, English mix. So I'll try to mix both the language. Okay, Hindi as well as English दोनों को mix करके बोलूंगा. ठीक है. To try to I'll mix Seleji. ठीक है. तो चार्ट पैटर्न जैसे मैंने कहा, ये क्या एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है प्राइस का. जो भी प्राइस बनते हैं मार्केट में डेली के डेली या वीकली, ठीक है, या इंट्राडे में, वो उसका रिप्रेजेंटेशन अपने विजुअल फॉर्मेट में दिखता है चार्ट के फॉर्म में. और ये जब चार्ट बनता है तो इसी तरह से कुछ पैटर्न्स बनते हैं. ओके, देयर आर सम पैटर्न्स जो सदियों से सालों से चले आ रहे हैं, वो पैटर्न्स बनते हैं. और वो पैटर्न्स क्यों बनते हैं? वो पैटर्न्स हमारी साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से बनते हैं. हम और आप मार्केट में जो ट्रेड करते हैं, हम और जितने भी मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट द प्राइस, वो अभी क्या सोच रहे हैं मार्केट के बारे में, वो सोच का रिफ्लेक्शन होता है आपका चार्ट पैटर्न्स. और उसी सोच को, उसी साइकोलॉजी को अपने एनालाइज करके उसके प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसका स्टॉक का डायरेक्शन क्या होगा. ठीक है. तो चार्ट पैटर्न्स नॉट ओनली गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक, इट आल्सो गिव्स द टारगेट ऑफ द स्टॉक. तो अपने को चार्ट पैटर्न्स अपने को डायरेक्शन तो बताते हैं किस डायरेक्शन में ये जा सकता है, प्लस साथ साथ ये कहां तक जा सकता है वो भी बताता है. तो वो अपने देखेंगे कैसे पता चलता है कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा और कहां तक जाएगा. ओके ओके, थैंक यू मोहन जी. तो चार्ट पैटर्न कहां तक जाएगा और कितने तक जाएगा वो हम लोग चार्ट पैटर्न से डिफाइन. अब ये चार्ट पैटर्न्स क्यों वर्क करते हैं,
ये चार्ट पैटर्न्स इसलिए वर्क करते हैं बिकॉज ऑफ अ ह्यूमन साइकोलॉजी, एंड इट इज बिलीव दैट ह्यूमन साइकोलॉजी नेवर चेंजेस, इट कीप्स ऑन रिपीटिंग, इट कीप्स ऑन रिपीटिंग एवरी टाइम। तो जब जब एक पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है, वी बिहेव इन अ सेम मैनर एवरी टाइम, वी बिहेव इन अ सेम मैनर, राइट, वी बिहेव इन अ सेम मैनर एवरी टाइम। ठीक है, तो जैसे जैसे एक एग्जांपल मैं छोटा सा देता हूँ, जैसे ही आप कोई गर्म चीज पे हाथ रखेंगे तो एवरीबॉडी विल व्हाट, आप क्या करेंगे, छट से हाथ हटाएंगे, यू विल रिमूव योर हैंड। So every time whenever you keep your hand, you will remove your hand from that hot thing. Okay. So same way in human psychology it repeats every time। सब patterns जो बनते हैं वो patterns को continue कर जाते हैं उसी तरह से। वो expectation बन जाती है कि this time also this pattern will give the same result as it has given before। जो रिजल्ट इसने पहले दिया था इस पैटर्न ने, वो रिजल्ट इस बार भी देगा। ठीक है, तो ये बनता है आपका पैटर्न। मैंने अभी चेंज स्लाइड नहीं कर रहा हूँ, स्लाइड चेंज करूंगा व्हेन आई कम टू इट। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफिंग अबाउट इट। ओके, देन आई चेंज द स्लाइड। ओके, सो डोंट वरी अबाउट द स्लाइड, जस्ट द इम्पोर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंड। ओके, तो स्लाइड अगर मूव नहीं करी, आई हैव नॉट चेंज द स्लाइड। ओके, सो डोंट वरी अबाउट द स्लाइड्स। सो क्या होता है तो ये पैटर्न्स आपकी उसी तरह से वर्क करते हैं बिकॉज आपकी साइकोलॉजी चेंज नहीं होती है। 100 साल पहले भी लोग उसी तरह से रिएक्ट करते थे, आज भी इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। तो व्हाट आर द टू मेन साइकोलॉजी जो मार्केट में है, दैट इज फियर एंड ग्रीड। आप सबको पता है, फियर एंड ग्रीड। एक होता है हर्ड्स मेंटालिटी, एक और साइकोलॉजी है दैट इज कॉल्ड हर्ड्स मेंटालिटी। मींस जो सब लोग सोच रहे हैं, जो सब कर रहे हैं, वो मैं भी करूंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हर्ड्स मेंटालिटी। आप लोग ने देखा होगा कि एक बार कोई रास्ते से कोई जाते हैं, कोई कच्चा रास्ता है जहाँ घास वास होती है, तो अगर अपने चलते हैं वहां पे तो एक देखेंगे बीच में एक लाइन बन जाती है, तो लोग उसी पाथ को फॉलो करते हैं, जहां से सब लोग जाते हैं अपने भी वहीं जाते हैं। तो ये क्या होता है, वो हर्ड्स मेंटालिटी बन जाती है कि हमको भी यहीं से जाना है। ऐसा कि कोई डायरेक्शन नहीं है कि मुझे वहीं से जाना है, मैं कहीं से भी जा सकता हूँ, बट क्योंकि वहां एक पाथ बन जाता है, वहां की घास हट जाती है, क्योंकि सब वही रूट यूज कर रहे होते हैं। ओके, तो दैट इज द साइकोलॉजी। तो वैसे ही हर्ड मेंटालिटी स्टॉक मार्केट में भी होता है। इफ एवरीबॉडी इज बाइंग, आई एम आल्सो बाइंग, इफ एवरीबॉडी इज सेलिंग, आई एम आल्सो सेलिंग, दैट बिकम अ हर्ड मेंटालिटी, आई विल फॉलो द क्राउड। ठीक है, सो इसीलिए ये साइकोलॉजी काम करती है। ओके, सो नाउ आई विल शो यू सम पैटर्न्स जो मार्केट में बनते हैं। ठीक है, और उसको कैसे रीड किया जाता है। तो मार्केट में जनरली ये साइकोलॉजी के मैंने बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, तो मार्केट में एक्चुअली दो तरह के पैटर्न्स हैं, वन इज रिवर्सल पैटर्न एंड वन इज कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है, तो दो तरह के मेन पैटर्न्स देखे गए मार्केट में, दैट इज रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन। तो ये रिवर्सल पैटर्न क्या होता है और कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है। तो व्हाट इज अ रिवर्सल पैटर्न। तो रिवर्सल पैटर्न इज अ पैटर्न विच रिवर्स मतलब घूम जाता है। इफ द स्टॉक इज ट्रेंडिंग डाउन, अगर कोई स्टॉक का ट्रेंड डाउन था, ठीक है, अगर उसने कोई रिवर्सल पैटर्न बनाया है तो इट विल स्टार्ट मूविंग अप, दैट इज कॉल्ड बुलिश रिवर्सल। ओके, और कोई स्टॉक का पैटर्न ट्रेंड अप था, इट वाज मूविंग अप, ट्रेंडिंग अप, और वापस से गिरने लगता है, ठीक है, दैट इज बियरिश रिवर्सल। इस तरह से बुलिश रिवर्सल के कुछ पैटर्न बनते हैं और कुछ बियरिश रिवर्सल के पैटर्न बनते हैं, जो हम लोग देखेंगे कौन से बुलिश रिवर्सल है और कौन से बियरिश रिवर्सल है। ठीक है, तो वैसे ही एक पैटर्न बनता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न भी दो तरह से होते हैं। एक डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन, मींस स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड जा रहा था, तो वापस से वो अपना ट्रेंड डाउन मूव करने लगता है। सपोज द स्टॉक वाज ट्रेंडिंग डाउन, फिर उसने ऊपर थोड़ा सा बाउंस बैक दिया। ठीक है, एक बाउंस बैक दिया जिसको अपने डेड कैट बाउंस भी बोलते हैं, कि स्टॉक गिर रहा था, फिर अचानक से एक बाउंस बैक आया, फिर वापस से स्टॉक गिरने लगा। ओके, तो दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड। तो स्टॉक गिर रहा था, then it has taken support, it gives some bounce back and again started falling, that is continuation pattern। या फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न ऊपर में बनता है, अगर स्टॉक वाज ट्रेंडिंग अप, देन इट टुक सम रेस्ट, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, स्टॉक थोड़ा नीचे आने लगा, एंड अगेन देन स्टार्टेड मूविंग अप, दैट इज कॉल्ड बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो जैसे बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के अपने नाम बताए, तो जैसे बुलिश फ्लैग इज अ बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, एंड बियरिश फ्लैग इज अ बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है, तो वैसे रिवर्सल पैटर्न जैसे होता है, रिवर्सल पैटर्न कैसे होता है, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर क्या आपका,
बियरिश रिवर्सल है, मींस ऊपर से नीचे जाएगा, दैट इज कॉल्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और बुलिश रिवर्सल पैटर्न कब होता है? जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है, वो अपने दिखाएंगे आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो वो होता है बुलिश रिवर्सल, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। सो कंटिन्यूएशन पैटर्न एंड रिवर्सल पैटर्न, तो दो तरह के मेन पैटर्न है, कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल पैटर्न, ओके। नाउ देयर इज अ, आई विल डिस्कस ट्रायंगल पैटर्न, ओके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। तो अपने देखेंगे ट्रायंगल पैटर्न कैसे बनता है, इसका कैसे कैसे टारगेट निकाला जाता है और कैसे स्टॉप लॉस निकाला जाता है, ठीक है। तो ट्रायंगल पैटर्न 3 तरह के होते हैं। वन इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। वन इज असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एंड द थर्ड वन इज डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो होता है, इट कैन बी आइदर रिवर्सल पैटर्न हो सकता है या वो कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कैन आइदर बी अ कंटिन्यूएशन पैटर्न और इट कैन बी अ रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन इन विच डायरेक्शन it is giving a breakout or breakdown, it will be considered as a reversal or a continuation pattern, okay. So now the first part is symmetrical triangle ka formation, how the symmetrical triangle is formed, okay. Now we are coming to the symmetrical triangle ka formation. So the stock ka trend is up, एक stock was trending up, okay, then it started some profit booking and stock started coming down. तो stock एक ऊपर जा रहा था, फिर उसने क्या की, कुछ profit booking आई और stock started trading in a range, and you can see that it had started making lower tops. जो टॉप है वो लोअर होने लगा, मींस दिस हाई इज लोअर देन दिस हाई, this high is lower than this high and this high is lower than this high. So this top is lower than this top, so it is called lower top. तो इससे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनी. When we connected this lower tops, we get one downward sloping line. तो जब इन लोअर टॉप्स को मैंने कनेक्ट किया तो मुझे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन मिली, ठीक है. उसी तरह से यू कैन सी कि यहाँ पे एक हायर लोज बना है या हायर बॉटम, मींस ये जो बॉटम है, ये जो लो है, is higher than this low, okay, and this low is higher than this low and this low is higher than this low. तो इनको जब कनेक्ट करूंगा तो आई गेट वन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन. सो यू कैन सी देयर टू कन्वर्जिंग लाइंस, दो कन्वर्जिंग लाइंस है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड एक अपवर्ड स्लोपिंग, राइट. स्टॉक का ट्रेंड क्या था? द स्टॉक वाज ट्रेंडिंग अप, देन इट स्टार्टेड ट्रेडिंग इन अ रेंज, कंसोलिडेटिंग इन अ रेंज, एंड हियर द मोमेंटम स्टार्ट लूजिंग. प्राइस का जो मोमेंटम से बढ़ रहा था वो मोमेंटम लूज होने लगा, प्रॉफिट बुकिंग आने लगी. अब जो बायर जो बाय कर रहे थे वो इंटरेस्ट लूज कर चुके हैं, ओके. सो द स्टॉक में मोमेंटम लूज हो गया, स्टॉक स्टार्टेड ट्रेडिंग इन अ नैरो रेंज, एक नैरो रेंज में ट्रेड होने लगा. अब once it give a breakout and closes above this upward sloping line के ऊपर अगर बंद हो जाता है, if it closes above this upward sloping line, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Then we will call it a continuation pattern. तब इसको अपने क्या बोलेंगे? कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलेंगे. जब ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देगा और ये कंटिन्यू करेगा, मींस अपना ट्रेंड अप था, इसने एक ट्रेडिंग रेंज बनाया, कंसोलिडेट किया एंड अगेन इट स्टार्टेड गोइंग अप, तो वी कॉल इट द कंटिन्यूएशन पैटर्न. क्लियर? नाउ अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट नहीं देके सपोज नीचे का ब्रेकडाउन दे देता, इस ट्रेंड लाइन के नीचे बंद हो जाता, देन वी कॉल इट इज अ रिवर्सल पैटर्न. तो क्या होता तब? ये रिवर्सल मींस अप ट्रेंड से स्टॉक वापस घूम के नीचे जाने वाला है, दैट इज कॉल्ड रिवर्सल पैटर्न, ठीक है. तो एक ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को अपने रिवर्सल पैटर्न भी बोल सकते हैं, अपने कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द breakout, in which direction it is giving breakout or breakdown. If it is giving an upward downward sloping line का breakout तो continuation pattern, और upward sloping line के नीचे बंद हो गया तो reversal pattern. Okay, hope till here it is clear. Okay, कौन सा टाइम फ्रेम में देखना होगा? डेली टाइम फ्रेम में. ओके विश्वजीत जी, डेली टाइम में. ओके, इज इट साइडवेज? या प्रवीण जी, दिस इज साइडवेज, ठीक है. साइडवेज बोल सकते हैं, कंसोलिडेशन बोल सकते हैं, ट्रेडिंग रेंज बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है. डिफरेंट, ठीक है, मीनिंग एक ही है, डिफरेंट टर्म्स. ओके, सो नाउ
सो आई थिंक फॉर्मेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो ये फॉर्मेशन के लिए आपको चिंता करना नहीं है, बिकॉज स्टॉकेज ऑलरेडी आपको बता देगा कि कौन से पैटर्न में, कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है. सो 80% ऑफ योर जॉब इज डन. ठीक है, थ्रू स्टॉकेज के ऐप से आपको चार्ट पैटर्न्स का 80% काम हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया या ब्रेकडाउन दिया है. ठीक है, ओके. ब्रेकआउट पर खरीदे. ओके, भाविन जी बता रहा हूं कब खरीदना है. सो नाउ टारगेट, अब स्टॉक का टारगेट क्या होगा. ब्रेकआउट तो दे दिया, ठीक है. अब ब्रेकआउट के बाद टारगेट, उसके बाद मैं एंट्री भी बताऊंगा कि एंट्री कब करनी है. ठीक है, और कौन सी एंट्री को लेना है और कौन सी एंट्री को ब्रेक अवॉइड करना है, क्योंकि स्टॉकेज में बहुत सी एंट्रीज आएंगी. ठीक है, तो उसमें से कुछ एंट्रीज होती है आपको छोड़ना पड़ेंगी, कुछ आपको लेना पड़ेंगी. आप जब क्रिकेट में कुछ बॉल्स जो होती है आप छोड़ देते हैं, जब क्रिकेट खेलते तो कुछ बॉल्स छोड़ देना पड़ती है ताकि आउट नहीं हो जाए अपने, है ना. तो वैसे स्टॉक्स में भी बहुत से स्टॉक्स आएंगे आप पे रिकमेंडेशन, बट कुछ स्टॉक्स आपको छोड़ना पड़ेंगे, उसको फिल्टर करना पड़ेंगे कौन से स्टॉक मुझे को लेना है. ठीक है, सो जैसे हर ओवर में आपको 6 मारना नहीं है. ठीक है, तो हर बॉल में मारना नहीं, वैसे ही हर ट्रेड में आपको लेना नहीं है. जरूरी कि हर ट्रेड लेना है वैसा नहीं है, आपको फिल्टर्स लगाने हैं, वो मैं बताऊंगा क्या क्या फिल्टर्स लगाना है. ठीक है, तो पहले अपने आ जाते हैं कि अगर ब्रेकआउट हो गया तो उसका टारगेट कैसे लेंगे. ओके, सो टारगेट कैसे लेंगे. ये जो हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस है, ये ट्राइंगल के अंदर में जो हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस देख रहे हैं ना, ये टॉप और ये बॉटम. ठीक है, इसका डिफरेंस लेंगे. सपोज ये टॉप है आपका 200 रुपीज का, एक आर्बिट्री नंबर ले रहा हूं मैं. सपोज दिस टॉप इज 200, ओके, एंड दिस लो इज 150. सो 200 माइनस 150, दैट इज 50 रुपीज, राइट. 50 रुपीज का आपका डिफरेंस है इन दोनों का. एंड सपोज स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है एट 170, 170 पे ब्रेकआउट दिया है. सो 170 प्लस 50 is how much? 220. So my target will be 220 for this stock. ठीक है, तो जितना भी ये वाइडेस्ट डिस्टेंस को लेंगे डिफरेंस, उसको अपने ब्रेकआउट पॉइंट पे ऐड करेंगे, राइट. अगर नीचे का ब्रेकडाउन हो जाता है तो क्या करेंगे, अपने ब्रेकडाउन पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे. जो ब्रेकडाउन पॉइंट है वहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे कि नीचे का टारगेट निकालने के लिए. ओके, so this is how we'll calculate the target for upside and downside. Now the next question is, what will be the stop loss? तो generally patterns don't give stop loss. Patterns आपको stop loss नहीं देते. ठीक है, कोई पैटर्न आपको stop loss देता नहीं है, बट आपको stop loss कहीं ना कहीं stop loss लगाना है. आप एक बात मार्केट में याद रखिएगा, जितने भी आप श्योर हो जाए मार्केट में, देयर इज नेवर अ श्योरिटी इन द मार्केट दैट 100% ये स्टॉक जो डायरेक्शन अपने सोचे उसी में जाएगा, या अपना जहां तक सोचे वहां तक जाएगा. ठीक है, ऐसा हो जाता तो एवरीबॉडी वुड हैव बीन अ millionaire, but it is not like that, right. So there is always a risk involved in market. There is never a surety. Okay, it is always a probability. अमीरुल जी प्लीज टॉप बॉटम फॉल्स से बोलिए, फिर से बोलिए. ओके, मैं रिपीट कर दूंगा. ठीक है, मैं स्टॉप लॉस बनाने के बाद आई रिपीट. ठीक है, सो स्टॉप लॉस, मैं जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करता हूँ और डिफरेंट वेज आपको बता सकता हूँ, एंड एज पर योर रिस्क प्रोफाइल आप अपना स्टॉप लॉस चूज कर सकते हैं, आपको कितना रिस्क सूट करता है, राइट. तो पहला स्टॉप लॉस रेशियो मैं जो रिकमेंड करता हूँ दैट इज 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. अगर आपको प्रॉफिट यहाँ पे 50 रुपीज का टारगेट है तो स्टॉप लॉस आप 25 रुपीज का नीचे रख सकते हैं. ओके, 25 रुपीज का स्टॉप लॉस रख सकते हैं इफ टारगेट इज 50 रुपीज. इफ टारगेट इज 100 रुपीज, यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 50 रुपीज फ्रॉम योर बाइंग प्राइस. ठीक है, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये आपको हमेशा माइंड में रखना है. ओके, द सेकेंड वे क्या है आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, दैट इज जहां पे ब्रेकआउट, जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे, दैट ऑल्सो यू कैन प्लेस योर स्टॉप लॉस बिलो द ब्रेकआउट का लो के नीचे. ठीक है, एंड थर्ड वे, अगर ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक इसके नीचे बंद कर देता है, ठीक है, ब्रेकडाउन दे देता है, इसके नीचे बंद कर देता है, तो आप निकल सकते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस चुन सकते हैं.
I will suggest keep your stop loss 1:2, very simple, बहुत सिंपल होता है 1:2 का। आप टारगेट तो आपको निकालना आता है, तो आपने टारगेट सपोज 50 रुपीज का है, तो आप 5 से 25 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट अगर 100 रुपीज का हो रहा है, तो आप स्टॉप लॉस अपना 50 रुपीज का रखिए, वेरी सिंपल। ओके, कैन वी प्लेस स्टॉप लॉस नेक्स्ट डे? यस, यू कैन प्लेस योर स्टॉप लॉस नेक्स्ट डे, यू कैन प्लेस इट। ठीक है, आप नेक्स्ट डे लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, सो ये हुआ आपका स्टॉप लॉस। सो टारगेट, एनी क्वेश्चन ऑन टारगेट एंड स्टॉप लॉस? अगर किसी को नहीं समझ में आया टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न? ओके, तो अमीरुल जी का एक क्वेश्चन था, प्लीज टॉप बॉटम फिर से बोलिए। ठीक है, तो टॉप बॉटम मैं बोल रहा था कि दिस इज मेकिंग लोअर टॉप। ठीक है, दिस इज मेकिंग लोअर टॉप, लोअर टॉप बना रहा है। जब ये जो टॉप है इस टॉप से लोअर है, और ये टॉप जो है इस टॉप से लोअर है, ये टॉप जो है इस टॉप से लोअर है, तो इसको बोलते हैं लोअर टॉप। ठीक है, ये टॉप इस टॉप से लोअर है, ये टॉप इस टॉप से लोअर है, ये टॉप इस टॉप से लोअर है, इसको बोलते हैं लोअर टॉप। ठीक है, और इसको बोलते हैं हायर लो, हायर लो या हायर बॉटम। ठीक है, मींस ये बॉटम जो है इस बॉटम से ऊपर है, ये बॉटम जो है इस बॉटम से ऊपर है, और ये जो बॉटम है इस बॉटम से ऊपर है, ये बॉटम जो है इस बॉटम से ऊपर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सतीश जी, आई शो यू ऑन द चार्ट ऑल्सो। अभी इसके बाद मैं स्टॉकेज में लेके जाऊंगा। ओके, प्लीज रिपीट अबाउट स्टॉप लॉस। ओके, तो स्टॉप, तो दिस इज कॉल्ड हायर बॉटम। ओके, तो स्टॉप लॉस मैंने कहा देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कीपिंग स्टॉप लॉस। वन वे इज कीपिंग अ स्टॉप लॉस इन द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। अगर मैं, मेरा टारगेट है 50 रुपए का, तो आई कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 25 रुपीज। इफ माय टारगेट इज 100 रुपीज, आई कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 50 रुपीज। ओके, दैट वे यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस। सेकंड इज, अगर जो ब्रेकआउट कैंडल होती है, एक बड़ी बुलिश ब्रेकआउट कैंडल है, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कुछ फिल्टर देके। सपोज ब्रेकआउट कैंडल के नीचे थोड़ा सा फिल्टर देके यू कैन पुट योर स्टॉप लॉस देयर आल्सो। एंड थर्ड वे, यू कैन पुट योर स्टॉप लॉस बिलो दिस ट्रेंड लाइन। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉक बंद हो जाता है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, क्लियर है गौरी शंकर जी? ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ओके ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। पहले का है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ये आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल का डाउनसाइड ब्रेकडाउन जो नीचे का दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग बता के देन आई विल टेक यू टू द स्टॉकेज का चार्ट पैटर्न्स। ओके, तो ascending triangle pattern is similar to the symmetrical triangle pattern, but only difference is that it is a bullish pattern। जैसे कि symmetrical triangle pattern आपका both side ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है, ये सिर्फ आपको अपसाइड ब्रेकआउट देगा। दिस इज अ बुलिश पैटर्न, दिस इज अ बुलिश पैटर्न। एंड वहां पे आपका दो एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन थी, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन थी, राइट? इसमें एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है एंड देयर इज वन फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और यहाँ पे एक हायर बॉटम बना के एक असेंडिंग अपवर्ड स्लोपिंग लाइन मिली है, और यहाँ पे एक आपको फ्लैट लाइन है। ओके, दिस इज फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी द स्टॉक इज फेसिंग रेजिस्टेंस, यहाँ पे स्टॉक इज फेसिंग रेजिस्टेंस, एंड वंस इट क्लोजेस अबव दिस, इस लाइन के ऊपर क्लोज हो जाएगा, तो असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो जाएगा एंड द स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू गो अप। ठीक है, तो स्टॉक ऊपर जाएगा। अब ये कितना ऊपर जाएगा, अपने टारगेट सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल में निकाला था। हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस ये जो है, इसका टॉप और बॉटम का डिफरेंस निकालेंगे, और वी विल एड अप टू द ब्रेकआउट पॉइंट। ब्रेकआउट पॉइंट पे ऐड करेंगे, सो विल गेट अ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का टारगेट। ठीक है, वहां से अपने को असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, नाउ डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल इज अ बियरिश पैटर्न। ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल इज अ बियरिश पैटर्न, जो कि डाउनसाइड का ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि डाउनसाइड जाएगा। अगर इस लाइन के नीचे बंद हो जाएगा, तो इट विल गो डाउन। तो हियर यू कैन सी देयर इज वन डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, मींस द स्टॉक इज लूजिंग द मोमेंटम, इसका मोमेंटम लूज हो रहा है, द प्राइस इज मेकिंग लोअर टॉप, दिस टॉप इज लोअर देन दिस,
तो मोमेंटम इज लूजिंग, और प्राइस के जो लेंथ है वो छोटा होता जा रहा है, रेंज जो है वो छोटा होता जा रहा है, मींस देयर इज अ लॉस ऑफ मोमेंटम, ठीक है। एंड हियर द स्टॉक वाज फेसिंग सपोर्ट, यहाँ पे स्टॉक को सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। और जैसे ही डिमांड एंड सप्लाई का इम्बैलेंस होता है यहाँ पे, द स्टॉक्स गिव ब्रेकडाउन, यहाँ पे इतनी सप्लाई आ जाती है मोर देन डिमांड, द स्टॉक्स गिव्स द ब्रेकडाउन एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन, और प्राइसेस एक्सपेक्ट होता है कि नीचे जाएगा, ठीक है। और इसका टारगेट कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस का डिफरेंस लेंगे, ठीक है, ये हाई और ये लो का डिफरेंस लेंगे, और ब्रेकडाउन पॉइंट से विल सब्ट्रैक्ट इट, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने को नीचे का टारगेट मिल जाएगा, ओके। भाविन जी के लिए आई जस्ट रिपीट कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का टारगेट कैसे, असेंडिंग ट्रायंगल का टारगेट अपने ये जो वाइडेस्ट डिस्टेंस है ट्रायंगल का, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा उसका डिफरेंस निकालेंगे। सपोज ये हाई है 200 और ये लो है 150, तो द डिफरेंस इज 50 रुपीज का डिफरेंस है। एंड सपोज द ब्रेकआउट पॉइंट इज 200, यहाँ पे 200 पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो 200 प्लस 50, तो विल गेट 250 का टारगेट, ठीक है। डोंट वरी, वी विल फाइंड द स्टॉप लॉस। अभी मैं आप लोग को स्टॉकेज के पैटर्न में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, चार्ट पैटर्न में। आई एम चेंजिंग द स्क्रीन नाउ। ठीक है, तो आई होप आप लोग को स्टॉकेज का एप्लीकेशन दिख रहा है, ऐप दिख रहा है, ठीक है, ओके। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे अंडर प्रो एनालिटिक्स यू कैन सी चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। तो अपने चार्ट पैटर्न्स में गए, वहां पे यू कैन सी ट्रायंगल पैटर्न जो अभी अपने डिस्कस किए, देन रीसेंट एंड पास्ट। रिसेंट मीन्स जो अभी हाल फिलहाल अभी आए हैं एंड दे आर एक्टिव कॉल्स, एंड पास्ट मीन्स जो आके यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं, आइदर इनका टारगेट अचीव हो गया है या एक पर्टिकुलर टाइम से ये बहुत टाइम से थे अब वो निकल चुके हैं, ठीक है, तो ये पास्ट में चले गए, ठीक है। तो अभी यू कैन सी देयर 37 स्टॉक्स जो रिसेंट में दिखा हुआ है ट्रायंगल पैटर्न से, ठीक है, जिसमें से 34 आपके जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल में है, दो स्टॉक जो है वो असेंडिंग ट्रायंगल में, और एक स्टॉक जो है वो डिसेंडिंग ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं, ऑरेंज कलर दिखा रहा है, इसको ऑरेंज कलर या येलो कलर इसलिए है बिकॉज ये अपसाइड भी डायरेक्शन दे सकता है, ब्रेकआउट डाउन साइड भी दे सकता है, ओके। असेंडिंग ट्रायंगल आपको ग्रीन में, बिकॉज इट कैन ओनली गिव यू अपसाइड ब्रेकआउट, अगर अपसाइड ब्रेकआउट नहीं हुआ तो पैटर्न विल बिकम नल एंड वॉइड, ओके। डिसेंडिंग ट्रायंगल इट इज इन रेड बिकॉज इट इज अ bearish pattern, that is why it is marked in red, okay. सो यूरेका फोब, महिंद्रा एंड महिंद्रा यूरेका फोब आया था 23 अगस्त को आया है, तो 23 अगस्त को यूरेका फोब आया, इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट। तो ये देखिए एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन के ऊपर यहाँ पे क्लोज दे दिया इसने, तो वेन एवर इट क्लोजेस, जब भी इसके ऊपर क्लोज होगा तो आपका स्टॉकेज में आ जाएगा, ठीक है। तो यूरेका फोब हैज गिवन अ अपसाइड ब्रेकआउट ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, दैट इज बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। और पैटर्न देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, इसने भी आपको क्या ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे अपसाइड ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। हियर द स्टॉक हैज गिवन देम अपसाइड ब्रेकआउट, ओके। टाइटन, so Titan has also given you an upside breakout यहाँ पे। Now I'll just request everybody, can you please find the target of Titan, क्या टारगेट होगा टाइटन का, just for the purpose of study, इस सबको समझ में आ गया, we'll try to find the target of इसका टाइटन का टारगेट निकालते क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग भी फाइंड कीजिए, मैं भी फाइंड करता हूँ।
आ गया सबका आंसर? ओके, मैं सबका रीड करता हूँ। पंकज जी 600 रुपीज प्लस, ओके। आशीष रॉय जी 3957 टारगेट, ओके। अमित जी 4093, जे थॉमसन 4K। टाइटल में नेक्स्ट कैंडल इन्फॉर्मिंग बन गया है 4120, ओके सुंदर जी। आशीष जी 3800, भाविन जी 400, सुनील जी 433, गौरी शंकर जी 4935, अभिनव जी 3960, राजन कुमार जी 401742, सलीम जी 4200, सस्वात जी 100, राजकुमार जी 4017। ठीक है, तो मैं भी अपना टारगेट बता दे रहा हूँ। मेरा जो टारगेट आया है दैट इज 3998, मीन्स अराउंड 4000 के आसपास। ठीक है, so 4000 is the target which is coming. Now I'll show you how I have calculated the target 4000, right? तो मैंने कहा था वर्टिकल डिस्टेंस, हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो आप इसमें से ये वाला भी ले सकते हैं, ये हाई भी ले सकते हैं, ये हाई और ये लो भी ले सकते हैं, और ये हाई ये लो भी ले सकते हैं। ठीक है, एनी टू लोज यू कैन टेक। ठीक है, अगर देखेंगे तो ये सबसे बड़ा वर्टिकल डिस्टेंस हाईएस्ट है इन दोनों का डिफरेंस। ओके, तो ये दोनों का डिफरेंस आप माइनस दिस हाई दैट इज 3625 एंड दिस लो दैट इज 3055। ठीक है, तो आप माइनस करेंगे तो अराउंड 550 पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा, राइट। तो उसको अपने ऐड करेंगे इस ब्रेकआउट पॉइंट पे 3500, राइट। तो 3500 पे वी विल ऐड द डिफरेंस बिटवीन दी, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स, ओके। डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट, कभी कभार होता है ये पॉइंट आपको कंप्लीट नहीं मिलता है, ये पॉइंट कंप्लीट नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस केस में आप ये वाला पैटर्न, ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो लेंगे। ठीक है, तो ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे तो मेरे को लगता है आपको एक चीज समझना होगा, दिस कैंडल वाज वेरी वोलेटाइल। ठीक है, दिस कैंडल वाज वेरी वोलेटाइल बिकॉज यहाँ पे कोई एक न्यूज आ गया होगा जिसकी वजह से, या कोई इवेंट होगा जिसकी वजह से यहाँ पे काफी वॉलेटिलिटी रही थी। तो ये एक इवेंट की वजह से कैंडल हो सकता है। ठीक है, तो आप ये पैटर्न, ये हाई और ये वाला लो ले सकते हैं, दिस हाई और दिस लो, ओके, दैट इज 500 पॉइंट। ठीक है, अगर ये नॉर्मल कैंडल होती तो आप ये वाला हाई लो भी ले सकते हैं, ओके। या लोकसभा दिस, या 4 जून लोकसभा इलेक्शन, ओके, थैंक यू शैलेश जी। ठीक है, तो लोकसभा इलेक्शन था, तो इवेंट वाले जो डेज होते हैं ना उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, वो वाले डेज क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी होती है उस डेज के। अगर उन दिनों पे अगर कोई पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो रहा है तो उनको उतना रिलायबल नहीं समझना चाहिए, बिकॉज एक इवेंट की वजह से होते हैं। नॉर्मल मार्केट कंडीशन में जो पैटर्न्स बनते हैं उन पे ज्यादा अपने रिलाई कर सकते हैं, दैट ऑन जो एक इवेंट बेस में बनते हैं पैटर्न्स उनको अपने थोड़ा इग्नोर करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें बहुत से फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो जाते हैं, तो उसमें अपने ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने इसमें टारगेट अराउंड 4000 टू 4500 के आसपास में इसका टारगेट अचीव होगा। ठीक है, तो मैंने कहा था स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस अगर आपका यहाँ पे 500 पॉइंट्स का टारगेट बन रहा है देन यू कैन टेक अ स्टॉप लॉस 250 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, दैट इज एंट्री पॉइंट से 250 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने कहा था कि आप ब्रेकआउट कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, तो ये मेरी ब्रेकआउट कैंडल है, राइट। जिनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ये मेरी ब्रेकआउट कैंडल है, तो इस लो के नीचे, ठीक है, इस लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, दैट इज द सेकंड स्टॉप लॉस यू कैन कीप बिलो द ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है, थर्ड, एक तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मैंने कहा था वो आप रख सकते हैं, फिर ब्रेकआउट कैंडल के हिसाब से मैंने कहा था स्टॉप लॉस वो आप रख सकते हैं, या आपको और बड़ा स्टॉप लॉस रखना है आप इसके नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, ये जो सपोर्ट है, जो लास्ट प्रीवियस स्विंग लो है, वह मैं कह रहा हूँ देयर डिफरेंट वेज ऑफ कीपिंग अ स्टॉप लॉस, इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क कैपेसिटी, आप कितना रिस्क देख सकते हैं। जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वो इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लें, जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं वो इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो और भी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक नहीं बंद होता वो वहां तक स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क कैपेसिटी, रिस्क एपेटाइट, यू कैन
maintain your stop loss, but still they are set जो as per ATR stop loss perfect, sir. Yes, you can keep at as per your ATR also, but keep in mind राजकुमार जी that stop loss should not go beyond 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से ऊपर नहीं जाना चाहिए. ठीक है, आपका रिस्क कम हो सके बट रिस्क बढ़ना नहीं चाहिए. दैट यू शुड कीप इन माइंड. दिस टारगेट विल अचीव व्हेन? गौरी जी, वेरी गुड क्वेश्चन, बट आई डोंट हैव एन आंसर टू दिस. क्योंकि कब होगा बोलना बहुत मुश्किल है. ठीक है, ये मतलब मार्केट को टाइम करना इज वेरी डिफिकल्ट थिंग. ठीक है, नोबडी कैन टाइम. आई कैन नॉट से कि कब होगा. इट कैन अचीव टारगेट इन 3 days, 5 days, 1 month और 3 month ऑल्सो. ठीक है, सो इट इज नॉट टाइम करना मार्केट को कितने दिन में हो जाएगा मैं नहीं बोल पाऊंगा. मैं आपको पैटर्न देख के डायरेक्शन बता सकता हूँ. पैटर्न आपको डायरेक्शन बता सकता है, टारगेट बता सकता है. कितने दिन में होगा वो नहीं बताता है. ठीक है, और वो मैं भी नहीं जानता हूँ. ठीक है, कि कितने दिन में अचीव होगा. जनरली अपने स्टॉक देखा गया है, जो पास्ट हिस्ट्री के देखा गया है, 1 से 3 महीने के अंदर में टारगेट अचीव हो जाता है. ठीक है, कोई भी पैटर्न का 1 से 3 महीने में टारगेट अचीव हो सकता है. कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ पे नहीं भी होता है, या उससे ज्यादा लंबे समय में होता है. कुछ 10 दिन में भी हो जाता है. यहाँ के 3-3, 4-4 दिन में भी अचीव हुए हैं टारगेट्स. ठीक है, तो देयर इज नो फिक्स्ड वो क्या बोलते हो, फिक्स्ड नहीं है कि कितने दिन में अचीव होगा. ठीक है, नाउ एंट्री. तो एंट्री दो तरह से आप कर सकते हैं. जब भी कैंडल ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो नेक्स्ट डे जब कैंडल के हाई के ऊपर चलता है, यू कैन इंटर. ठीक है, आइदर यू कैन इंटर ऑन द रीटेस्ट. अब जब ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ऊपर चला गया और वापस अगर नीचे आके अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करता है एंड स्टार्टेड मूविंग अप, देन अगेन यू कैन री इंटर एट दैट पॉइंट. दैट इज रीटेस्टिंग. अब ब्रेकआउट देने के बाद नेक्स्ट डे अगर उसके हाई के ऊपर चल रहा है, ओके, थोड़ा देख लीजिए प्राइस मेंटेन कर रहा है, ओके, देन यू कैन इंटर नेक्स्ट डे. ठीक है, नेक्स्ट डे आप उस पर इंटर कर सकते हैं. ठीक है, एंड अगर आप स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एक ही दिन में ब्रेकआउट देके बहुत बड़ी कैंडल के साथ बढ़ गया है, वेट फॉर द स्टॉक टू गिव सम करेक्शन. ठीक है, रीटेस्ट के लिए ना आया तो हो सकता है रीटेस्ट में नहीं आए, स्टॉक बढ़ता ही चला जाए, हो सकता है. तो आप अगर ऐसा है तो मार्केट में वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी. ठीक है, मिस हो जाएगी, नहीं पकड़ पाया, नेक्स्ट स्टॉक में मैं इंटर करूंगा. ठीक है, तो आप ब्रेकआउट के फौरन बाद इंटर कर सकते हैं, या आप कंफर्मेशन के लिए रीटेस्ट के लिए वेट कर सकते हैं कि ब्रेकआउट को रीटेस्ट करें. 70-80% टाइम स्टॉक्स रीटेस्ट करता है. ठीक है, 20-30% टाइम जो होता है स्टॉक रीटेस्ट नहीं करता है और वापस वो अपना ब्रेकआउट देके ऊपर चलता ही रहता है. ठीक है, तो ब्रेकआउट इन द मार्केट इज अ वेरी बिग थिंग. ब्रेकआउट जो होते हैं, राइट ब्रेकआउट जो होते हैं मार्केट में, वो एक बहुत बड़ी चीज है. ठीक है, तो बहुत राइट ब्रेकआउट मार्केट में ओनली 20-30 टाइम्स जो होते हैं, परसेंट टाइम्स राइट ब्रेकआउट होते हैं मार्केट में. बहुत से फॉल्स ब्रेकआउट हो जाते हैं मार्केट में, जिसमें लोग ट्रैप हो जाते हैं. ओके, नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई विच इज अ राइट ब्रेकआउट एंड विच इज अ फॉल्स ब्रेकआउट. फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है. ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट तो आपको पता चलेगा बाद में जब वो हो जाएगा. ठीक है, तो अपने कैसे इसमें लगा सकते हैं कि उसमें राइट ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है. ठीक है, तो उसके लिए अपने कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी स्टॉक में अपने ब्रेकआउट अगर खेल रहे हैं, राइट, अगर बुलिश बाय ब्रेकआउट खेल रहे हैं, कोई स्टॉक बाय ब्रेकआउट दिया है, तो वी हैव टू सी ओवरऑल मार्केट कंडीशन वेदर इट इज इन बाय और सेल. मार्केट अभी क्या है, बाय में है या सेल में है. ठीक है, और स्टॉक का सेक्टर भी देखेंगे अपने, सेक्टर बाय में है या सेल में है. ठीक है, अगर सेक्टर भी बुलिश है, मार्केट भी बुलिश है, और स्टॉक भी आपको बुलिश ब्रेकआउट दे रहा है, देन द चांसेस आर दैट द ब्रेकआउट इज राइट. राइट, सेकेंड, कैंडल आप देखेंगे कि कैंडल का साइज क्या है. बिग बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है. ठीक है, अगर बिग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट कैंडल के पास हाई के पास में बंद किया स्टॉक, ठीक है, एंड वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, तो दैट इज अगेन अ कंफर्मेशन दैट इट कैन बी अ राइट ब्रेकआउट. राइट, so you have to see the strength of the candle, you have to see where the candle has closed, whether it has closed on the high of the candle or mid of the candle forming a doji candle या low पे बंद हुआ है. ठीक है, और वॉल्यूम देखेंगे. ठीक है, देन
ये आपको बताएगा कि ये राइट ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेक। तो उस पर आपको अगर ये सब कंडीशंस मिल रही है, कैंडल का स्ट्रेंथ अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा है, हाई पे क्लोज दिया है, तो स्टॉक का सेक्टर भी आप है, तो वी कैन अज्यूम कि स्टॉक में राइट ब्रेकआउट होगा एंड वी कैन टेक आर एंट्री। नेक्स्ट डे अपने एंट्री ले लेंगे एंड वील जस्ट मेंटेन अ स्टॉप लॉस एंड वेट एंड वॉच। अपने टारगेट के लिए वॉच करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, या अपना स्टॉप लॉस अचीव हो जाएगा या टारगेट लॉस या टारगेट अचीव होगा। तो दोनों में से कुछ तो होगा, आइदर स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा। वी विल सी कि क्या होता है। तो डिसिप्लिन, विल हैव टू मेंटेन अ डिसिप्लिन, ठीक है। और अगर आप इसमें कुछ इंडिकेटर्स लगाना चाहें तो यू कैन ऑल्सो पुट इंडिकेटर्स। क्या इंडिकेटर यूज कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 डेज का रिलेटिव स्ट्रेंथ शुड बी पॉजिटिव, मीन स्टॉक जो है 55 डेज से इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, ओके, दैट यू कैन सी रिलेटिव स्ट्रेंथ। देन आरएसआई शुड बी ट्रेंडिंग अप, वो आपको ऊपर जाना चाहिए, मींस 50 के ऊपर जा रहा है स्टॉक, इट इज मूविंग अप, ठीक है, इट इज मूविंग अप, स्टॉक इज आरएसआई इज ट्रेंडिंग अप, ठीक है। वेयर टू सी रिलेटिव स्ट्रेंथ? रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको इंडिकेटर में ही मिल जाएगा। यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऐड कर सकते हैं। ये आरएसआई है, ठीक है, यू कैन ऐड आरएसआई और यू कैन सी रिलेटिव स्ट्रेंथ बेंचमार्क इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ बेंचमार्क इंडेक्स मींस निफ्टी से स्ट्रेंथ कंपेयर करता है, ठीक है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ आरएस सेक्टर, ये आपको सेक्टर से कंपेयर करता है कि सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। अब आईसीआईसीआई बैंक है, ये बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो आपको इससे पता चलेगा, सेक्टरल इंडेक्स आरएस से। और आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो आपको आरएस मार्केट से पता चलेगा, ठीक है। ओके, सो हियर यू कैन ऐड रिलेटिव स्ट्रेंथ मार्केट, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हियर यू कैन सी, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। आप अगर आरएसआई ऐड करना चाहें यू कैन ऑल्सो ऐड आरएसआई। तो जो भी इंडिकेटर्स आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। आप मूविंग एवरेज देख सकते हैं, अगर स्टॉक आपका 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है और स्टॉक ने बुलिश ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, तो वो स्टॉक में और आरएस भी पॉजिटिव है, तो इट्स अ गुड सिग्नल, यू कैन गो फॉर अ बाय, ठीक है। अगर अगर कोई स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और उसने स्टॉक में बुलिश ब्रेकआउट दिया है, तो उसको मैं अवॉइड करूंगा। दो स्टॉक है, एक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, उसका आरएस भी पॉजिटिव है, आरएसआई भी 50 के ऊपर है, ठीक है, तो आई विल, एंड द स्टॉक इज गिवन अ बुलिश ब्रेकआउट, तो मैं बाय करूंगा, ठीक है। और एक स्टॉक है जिसने आपका बुलिश ब्रेकआउट दिया है बट आरएस उसका नेगेटिव है, जीरो के नीचे है, आरएसआई 50 के ऊपर है बट आरएस नेगेटिव है और वो अपना 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो उसको मैं अवॉइड करूंगा, ऑल्दो इट हैज गिवन अ बुलिश ब्रेकआउट, ठीक है, तो उसको मैं अवॉइड करूंगा। क्लियर है? ओके, कैन यू यूज दिस चार्ट इन मार्केट आवर्स? मार्केट आवर्स में चार्ट लाइव अपना पैटर्न्स लाइव नहीं आते हैं, ठीक है, पैटर्न्स आप जो है वो ईओडी है, ठीक है, और डेटा भी अपना लाइव नहीं है, ईओडी, बट आपको डिलेड इंटरडे मार्केट प्राइस मिल जाएगा विच इज डिलेड, ठीक है, डिलेड होकर आता है, लाइव नहीं आता है। हाउ टू गेट लोअर टाइम फ्रेम लाइक 1 आवर? तो इंटरडे में यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे जिसको देखना है तो यहाँ पे इंटरडे में ये टिक चार्ट है, यू कैन गेट द टिक चार्ट ओनली, ओके। तो आपको आर्ली वीकली और आर्ली में हाफ ईयरली में देखना है, 30 मिनट्स में देखना है, यू कैन यूज एनी अदर ट्रेडिंग चैटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हैं, investing.com यूज कर सकते हैं, एनी गुड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यू कैन यूज, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ आपको, अगर आप अपना कौन आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स ने क्या पैटर्न बनाया है, अगर वो आपको जानना है तो वो आप यहाँ पे माई स्टॉकेज में जाके माई वॉच लिस्ट में आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, यू कैन
मेक अ पोर्टफोलियो, जैसे मैंने एक टेस्ट के नाम से बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स ऐड कर लिए और वहां पे आप जाके उसमें आप अगर चार्ट पैटर्न्स में क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स ने कब कौन सा चार्ट पैटर्न बनाया था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टाटा मोटर 4 जुलाई को बनाया था सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे रैडिको खैतान ने डबल टॉप बनाया था 26 जून को, ये मेरे पोर्टफोलियो में था। तो यहाँ पे मुझे पता, फिर रैडिको को बनाया था सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। तो इससे अपने को जो जो मेरे वॉच लिस्ट में जो स्टॉक सेव होंगे उससे मुझे पता चल जाएगा कौन से स्टॉक्स ने कब पैटर्न कौन सा बनाया था, ठीक है। ये रिसेंट है, यहाँ पास्ट में भी जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू चार्ट पैटर्न्स। होप आप लोग को ट्रायंगल पैटर्न क्लियर है, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड सिमेट्रिकल। अब एक और चीज बताना चाहता हूँ, आपका एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया है और एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन आया है, ठीक है। ओवरऑल मार्केट कंडीशन इज गुड, मतलब ओवरऑल मार्केट इज गोइंग अप, Nifty is going up, and in today I got two stocks. One is has given a bullish ascending triangle and one has given a bearish descending triangle breakdown. तो which stock को मैं ट्रेड लूंगा, कौन से स्टॉक में मैं ट्रेड लूंगा, ascending triangle में लूंगा या descending triangle में लूंगा? शैलेश जी ascending triangle, okay. कुमार जी ascending triangle, okay. Any more answers? प्रभु जी descending triangle, okay. Any more? Ascending due to market ascending, Monica ji ascending, Saswat ji ascending, okay. So ascending is the correct answer, ठीक है। तो ascending triangle में लेंगे, क्यों ascending triangle में लेंगे? Because overall market condition up है और bullish breakout, ऊपर का breakout दे रहा है, तो stock and market are in the same direction, ठीक है। But अगर मैं descending triangle का लेता हूँ तो they are in the opposite direction. It means market is going up and stock is going down, so there is weakness in the stock, but there is weakness, but what may happen, that weakness may be short term, ठीक है। वो वापस से सपोर्ट लेके बढ़ सकता है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल ट्रेंड अप है, अगर मार्केट बढ़ता जाएगा तो स्टॉक भी सपोर्ट लेके बढ़ जाएगा। तो आई विल अवॉइड डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक, आई विल बाय bullish breakout stock when a market is up, okay. So market is up, sector is up and stock has also given a bullish breakout, I will go for a buy. If market is down, sector is down and stock has given a bearish breakdown, I will go for sell. So bullish market conditions में avoid bearish pattern, bearish market conditions में avoid bullish market. Yes, Sanjay ji rightly said, trend is your friend, ठीक है। Monday market closed, I don't think so. Monday market is closed, I think it is open. I have to check NSE site, okay. I think it is open, okay. For Jamnashtami, I think there is no holiday. No, yeah, it's open. Okay. So तो ये पैटर्न जो था कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, ठीक है। तो और एक पैटर्न्स मैं करा देता हूँ आप लोग को, बुलिश फ्लैग पैटर्न, फ्लैग पैटर्न्स, ओके। सो फ्लैग पैटर्न दो तरह के होते हैं, बुलिश फ्लैग एंड बेयरिश फ्लैग, ओके। दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। बुलिश फ्लैग जो है वो अपसाइड कंटिन्यूएशन होता है और बेयरिश फ्लैग जो होता है वो डाउनसाइड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, ठीक है। सो यू कैन सी बुलिश फ्लैग, श्रीराम फाइनेंस ने बुलिश फ्लैग बनाया है 19 अगस्त को 3059 पे, दिस इज द एंट्री पॉइंट एंड एलटीपी अभी उसका चल रहा है 3126, ठीक है। वोल्टास ने बनाया है 12 अगस्त को 1560 पे, अभी 1690 चल रहा है, ओके। एंड केएनआर कंस्ट्रक्शन ने बनाया 407 पे, अभी 341 चल रहा है। Why KNR failed? Technical analysis is all about price. Technical analysis में there is no why, okay? It is only we follow the price. अगर फेल हो रहा है तो we'll take a stop loss, अगर stop loss trigger हो जा रहा है, okay?
तो एक एक करके देखते हैं इसमें बुलिश फ्लैग। सो बुलिश फ्लैग पैटर्न में क्या है, दो दो चीज है, तीन चीज एक्चुअली है। वन, दे शुड बी अ अप ट्रेंडिंग मार्केट, ये एक अप ट्रेंड होना चाहिए, विच यू कैन सी देयर इज एन अप ट्रेंड। ओके, देन दे शुड बी अ साइडवेज मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट्स, ठीक है, एक रेंज बाउंड मूवमेंट होना चाहिए, एक फ्लैग की तरह बन जाता है। ओके, दैट इज बाय इसको फ्लैग एंड पोल का बोला जाता है, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स द पोल एंड दिस रिप्रेजेंट्स द फ्लैग। ठीक है, तो दिस इज अ कंटिन्यूएशन पर, तो ये एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में बनता है, फिर ये एक कंसोलिडेशन, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग होता है, एंड देन थर्ड पॉइंट इज अ ब्रेकआउट। तो अप ट्रेंड, range bound trading, consolidation, and then breakout. So these three things we have. They should have been an uptrend, एक ट्रेडिंग बॉन्ड, एक ट्रेड रेंज बॉन्ड ट्रेड होना चाहिए, एंड देन ब्रेकआउट, ये तीन चीज चाहिए। तो जब भी ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज हो जाएगा कैंडल, देन इट इज अ बुलिश ब्रेकआउट ऑफ बुलिश फ्लैग पैटर्न। ओके, नाउ इसका टारगेट कैसे निकालेंगे? देयर आर टू वेज ऑफ फाइंडिंग टारगेट ऑफ बुलिश फ्लैग पैटर्न। ठीक है, पहले कैसे निकालेंगे? ये जो है, ये डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये रेंज बॉन्ड, तो दिस हाई एंड दिस लो का डिफरेंस लेंगे, विल टेक द डिफरेंस ऑफ दिस हाई एंड दिस लो का डिफरेंस। सो दिस हाई इज 3059, 3060, ठीक है, 3060 का ये हाई है, और ये लो है 2635। ठीक है, सो अराउंड 400-450 पॉइंट का अपना टारगेट हो रहा है। ठीक है, तो जब भी इसके ऊपर बंद हो जाएगा, यहां से अपने अराउंड 450 पॉइंट्स ऐड करेंगे, सो वी विल गेट द टारगेट ऑफ दिस। सो ब्रेकआउट हुआ था आपका यहाँ पे, बुलिश ब्रेकआउट हुआ था 350 पे, तो 450 ऐड करेंगे तो मींस अराउंड 3500 इसका टारगेट होगा। ठीक है, तो श्रीराम फाइनेंस का अराउंड 35 ये फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट विल बी 3500। ओके, नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट द सेकंड टारगेट? सेकंड टारगेट विल बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द हाइट ऑफ दिस पोल, ये हाई और ये लो का डिफरेंस लेंगे। तो दिस हाई इज 3060, और यहाँ पे जो लो बना है अराउंड इसको अपने 2200 पकड़ लेते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। तो 2200 और यहाँ पे आपका 3050, तो करीब 850 पॉइंट का डिफरेंस हो रहा है। ओके, सो 850 पॉइंट प्लस 3850, तो अराउंड 3900 विल बी माई सेकेंड टारगेट। क्लियर? सेकेंड टारगेट क्या होगा? इस हाई और इस लो का, विल टेक द डिफरेंस ऑफ दिस हाई एंड दिस लो एंड विल एड अप टू दिस ब्रेकआउट पॉइंट। ठीक है, इस ब्रेकआउट पॉइंट पे ऐड कर देंगे टू गेट द सेकेंड टारगेट। ठीक है, विल गेट द सेकेंड टारगेट बाय एडिंग दिस हाई एंड दिस लो। ठीक है, ये हाई और ये लो को ऐड करेंगे तो विल गेट द सेकेंड हाई का सेकेंड टारगेट। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट ये डिफरेंस लेंगे अपने, इस रेंज का हाई लो का डिफरेंस लेंगे, ऐड करेंगे, एंड सेकेंड टारगेट इस पोल का हाई लो को ऐड करेंगे। एनी क्वेश्चन ऑन दिस टारगेट का? टारगेट के ऊपर कोई क्वेश्चन है बुलिश फ्लैग में? ओके शैलेश जी, थैंक यू। ओके हविंदर जी, थैंक यू। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर फॉर ऑल। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम, ये स्टॉप लॉस क्या लेंगे? ठीक है, तो पहला स्टॉप लॉस, क्योंकि मेरा पहला टारगेट अराउंड 450 रुपीज या 400 रुपीज का हो रहा था, तो मैं अराउंड 225 का मैं स्टॉप लॉस लूंगा। फर्स्ट टारगेट के हिसाब से मैं फर्स्ट स्टॉप लॉस लूंगा। ठीक है, जैसे ही मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा, तो मैं अपना स्टॉप लॉस सेकंड टारगेट के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ले लूंगा। यहाँ पे 800 का अगर मेरा टारगेट बन रहा था, तो मैं स्टॉप लॉस 400 पॉइंट का रख लूंगा। ठीक है, क्लियर? सो यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, जितना आपका टारगेट होगा उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस रखेंगे। आइदर जो मैंने आपको कहा था ब्रेकआउट कैंडल, यस यू कैन ट्रेल, ट्रेल कर सकते हैं भावन जी। ठीक है, तो आप स्टॉप लॉस अपने ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे, जिनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो इस कैंडल के लो के नीचे अगर बंद होता है स्टॉप, तो आप यहाँ भी ले सकते हैं। आप इस सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या ये जो फ्लैग का जो लो है, इस कैंडल के नीचे भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आप सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? ये श्रीराम फाइनेंस का चार्ट दिख रहा है ना? आई थिंक सबको दिख रहा है, होप। ओके, ठीक है,
नो शो चार्ट पैटर्न इन स्टॉकेज माई वॉच लिस्ट। ओके, हाउ टू ट्रेल। ट्रेल आप करते जाते हैं, जैसे जैसे आपका प्राइसेस ऊपर जाता जाता है, आप उसके नीचे, उसके प्रीवियस स्विंग के नीचे आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आपका पहला टारगेट, सपोज अगर मैं यहाँ पे, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लिया था, मैं यहाँ पे एंट्री लिया था और स्टॉक अभी यहाँ पे चल रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या किया, पहला मेरा स्टॉप लॉस, मैं जब यहाँ पे एंट्री लिया था, मेरा पहला स्टॉप लॉस सपोज यहाँ पे था, अब स्टॉक यहाँ पे आ गया है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस अब इसके लो के नीचे लगा दूंगा। ठीक है, अब जब प्राइस और इसके भी ऊपर चला जाएगा, तो मैं अपना स्टॉप लॉस इसके यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा। तो अपना मैं स्टॉप लॉस, प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है, मैं अपना स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाता जा रहा हूँ। ओके, दिस इज हाउ यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस। कैन बी फोरकास्ट ऑन नेक्स्ट डे मार्केट एंड हाउ वी कैन प्रिडिक्ट इट, बट फिर मैं बोलूंगा, तो कभी श्योरिटी फिर भी नहीं है। अपने डेटा पॉइंट से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बहुत से चीज होते हैं, अपने डेटा देखते हैं कि स्टॉक में क्या हुई है, वॉल्यूम के साथ बाइंग है। कि जनरली मार्केट में क्या होता है, कोई स्टॉक अगर एक ट्रेंड में चल रहा है, तो वो ऊपर के ट्रेंड में चलता रहता है। ठीक है, थोड़ा करेक्शन देता है, तो इसीलिए बोलते हैं इन अ इन अ बुक इन अ बाय ऑन डिप्स कब बोला जाता है, व्हेन ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द स्टॉक अगर बाय है, ठीक है, तो ऊपर बुलिश है, वो जब करेक्शन देता है, नीचे थोड़ा आता है, तो वो बाय ऑन डिप्स, तो नीचे अपने बाय करते हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अप है। वैसे ही अगर ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, तो सेल ऑन राइज, तो ट्रेंड डाउन है, थोड़ा बाउंस बैक दिया, सेल किया अपना। ठीक है, सो ये था फिर वोल्टास। सो वोल्टास ने भी यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, बुलिश कैंडल दिया, वॉल्यूम भी बढ़ा। ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, जैसी जब प्राइस इस दिन इस पे हाई के ऊपर चला, ब्रेकआउट के ऊपर चला, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, एंड स्टॉप लॉस अपना आप इस कैंडल के लो के नीचे रख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसके नीचे रख सकते हैं, 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हैं। अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ रखा था पहले, तो अब क्योंकि स्टॉक ऊपर जाने लगा है, तो आप ट्रेलिंग करना चाहते हैं, तो यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस हियर ऑल्सो, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाने लगा, तो अब ये वापस से नीचे नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो वीकनेस है। ठीक है, तो डिफरेंट वेज है स्टॉप लॉस में लगाने का। ठीक है, अब एक देखते हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन, जहां पे ये फेल हुआ है, देखता हूँ। ठीक है, सो केएनआर कंस्ट्रक्शन में देखिए फेल्ड हो गया, द ब्रेकआउट हैज, तो फेल कुछ लोगों के लिए फेल हुआ है, कुछ लोगों के लिए फेल नहीं हुआ है, कैसे, तो यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, बट ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस इसके ऊपर गया, बट उतना मेंटेन नहीं किया। सपोज फिर भी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ आप लोग ने ले लिया, किसी ने अगर ले लिया, तो जिन्होंने ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखा होगा, वो यहाँ पे एग्जिट कर गए होंगे, इस कैंडल के नीचे विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस एग्जिट कर गए होंगे। ठीक है, जिन्होंने इस कैंडल के लो के नीचे, इस फ्लैग के लो के नीचे रखा होगा स्टॉप लॉस, वो लोग अभी भी ट्रेड में बने हुए हैं, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। जिन्होंने यहाँ पे लिया है, वहां पे उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, वो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। So this pattern, for some it has failed and for some it has not failed. तो फाइनली ये फेल कब होगा स्टॉक, जब इसके नीचे अगर बंद हो जाता है, देन इट विल फाइनली, द पैटर्न विल फेल। ओके, यस, अभी अगर अगर किसी को एंट्री अगर लेना है किसी को, तो यहाँ पे आप छोटा सा रिस्क लेके, कि अगर यहाँ पे, क्योंकि देखिए सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक दे रहा है, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं विद अ वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे रिस्क बहुत कम है। ठीक है, बट अगर आप पैटर्न के हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ब्रेकआउट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तब आप, जब इसके ऊपर जाएगा तभी ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है, तो आपको इसी के ऊपर जब जाएगा, देन ओनली यू कैन ट्रेड। सपोर्ट रेजिस्टेंस में यू कैन बाय एट हियर। ठीक है, यू कैन बाय हियर फॉर अ टारगेट, यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट, एंड अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, जस्ट अगर इसके नीचे बंद होता है, तो वहां पे आप स्टॉप लॉस रख के सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, बट ब्रेकआउट अगर खेलना है, तो आपको यहीं पे स्टॉप लॉस लेना होगा। ओके, क्लियर है। Hope it is clear. Any question on this? Okay. तो वैसे ही हम एक बेयरिश फ्लैग भी देख लेते हैं अपने।
So Maharashtra Seamless has formed a bearish flag. So the trend is down. The stock is trading in a range. यहाँ पे इसने bearish flag का breakdown दिया है. Okay. So breakdown देने के बाद वापस stock has going up. Now अब आपका एक क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी कि ओवरऑल ट्रेंड अगर अप है और स्टॉक अगर बेयरिश पैटर्न ब्रेकडाउन दे रहा है, यू शुड अवॉइड इट. As current scenario of the market is up, right? Current scenario of the market is up, so bearish pattern should be avoided. अगर आप, मैंने आपको पहले कहा था, अगर bearish pattern खेलेंगे अप ट्रेंडिंग मार्केट में तो चांसेस आर हायर दैट इट में रिवर्स, as you can see in this pattern. Okay, because overall trend of the market is up. So break out bearish pattern, uptrend market, avoid bearish pattern. Okay, अगर फिर भी अगर किसी ने अगर ये बेयरिश पैटर्न पे सेल भी किया है तो यहाँ पे ब्रेकडाउन कैंडल के ऊपर यहाँ पे वो उसको एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर जब चला जाएगा तब आप एग्जिट कर सकते हैं. ओके, एनी क्वेश्चन? हाउ टू फॉर्म द कैंडल चेन्नई चेन्नई चैनल पैटर्न. अच्छा, चैनल पैटर्न. ओके, तो चैनल पैटर्न तीन तरह का होता है. देयर इज राइजिंग चैनल, फॉलिंग चैनल एंड फ्लैट चैनल. ठीक है, सो राइजिंग चैनल कैसे बनता है? अपने हायर हाइस को जोड़ते हैं, हायर हाइस. ओके, एंड लोअर हाइस को अपने जब जोड़ते हैं तो अपने को हायर लोस को जब जोड़ते हैं तो अपने को राइजिंग चैनल बनता है. तो एटलीस्ट 2 पॉइंट इज रिक्वायर्ड फॉर चैनल टू फॉर्म, एक दो. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 2 पॉइंट मिला इसलिए यहाँ पे बन गया. ठीक है, तो दिस इज राइजिंग चैनल. तो राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन डिपेंड करता है उसके ब्रेकआउट के ऊपर. ये आपका बुलिश भी हो सकता है, बेयरिश भी हो सकता है. अगर नीचे ब्रेकडाउन दिया है तो ये बेयरिश पैटर्न हो जाएगा, अगर ऊपर ब्रेकआउट दिया है तो बुलिश पैटर्न हो जाएगा. तो जैसे इसने के नीचे ब्रेकडाउन दिया है तो क्या अभी आप इसको ब्रेकडाउन खेलेंगे? एनी आंसर्स ऑन दिस? एनी आंसर? विल यू प्ले द ब्रेकडाउन? नो. प्रभु जी का आंसर है नो. मोहन जी अवॉइड. ओके, मानव जी नो नो नो. आई विल ऑल्सो से नो. नाउ व्हाई नो? मधु जी बोल रहे हैं कि खेलेंगे. ओके, सरफराज जी नो. तो जैसा मैंने कहा था कि मार्केट कंडीशन अभी डाउन है, अप है, तो कोई भी बेयरिश पैटर्न को अपने अवॉइड करेंगे. करने को तो कर सकते हैं, अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस और टारगेट मेंटेन करके कर सकते हैं. ठीक है, बट चांसेस अपने राइट पड़ने का बहुत कम हो जाएगा. ठीक है, अगर यही चीज डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में ब्रेकआउट होता तो डेफिनेटली आप लोग जाते इसमें सेल में. ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे वो सपोर्ट ले ले, तो इसलिए यहाँ पे बाउंस बैक हो सकता है, तो इसलिए अपने इसको अवॉइड करेंगे. ठीक है, टारगेट्स कैसे निकलता है? तो टारगेट्स का अपना वही सेम है. तो जो वाइडेस्ट चैनल का जो डिस्टेंस होता है, हाई और लो का जो डिस्टेंस है चैनल का, अगर नीचे का ब्रेकडाउन दिया है तो वो डिस्टेंस को अपने सब्ट्रैक्ट कर देंगे नीचे डाउन साइड टारगेट पाने का. अगर ऊपर का ब्रेकआउट दिया है तो अपने वो ऐड कर देंगे ब्रेकआउट पॉइंट से. विल ऐड टू द ब्रेकआउट पॉइंट. ओके, तो ब्रेकआउट पॉइंट को अपने ऐड कर देंगे अगर अपसाइड ब्रेकआउट दिया है. ओके, तो if the stock has given the breakdown तो टारगेट विल बी कैलकुलेटेड बाय ये जो डिस्टेंस है चैनल का, जो डिस्टेंस है. ठीक है, जो चैनल का डिस्टेंस है उसका हाई और लो का डिफरेंस अपने ब्रेकडाउन पॉइंट से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट द डाउन साइड टारगेट. अगर ऊपर बंद करता है चैनल के तो विल टेक ऐड ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर वो डिफरेंस को अपने ऐड कर देंगे. जो चैनल का जो डिस्टेंस है इसको अपने ब्रेकआउट पॉइंट पे ऐड कर देंगे. ओके, so PB Fintech, Policy Bazaar. So here you can see it has given a bullish breakout. यहाँ पे क्या दिया है? बुलिश ब्रेकआउट दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, चैनल का जो डिस्टेंस है हाई लो. ठीक है, बीच में जो चैनल का हाई लो का जो डिस्टेंस बना है, ठीक है, ये हाई और ये लो को डिफरेंस लेंगे एंड विल ऐड टू द ब्रेकआउट पॉइंट. तो दिस इज अ बुलिश ब्रेकआउट. तो मुझे अभी पॉलिसी बाजार भी एक हाथ में मुझे पॉलिसी बाजार मिल रहा है और एक हाथ में मुझे गुजरात फ्लोरो केमिकल मिल रहा है.
एक बाय मिल रहा है, एक सेल मिल रहा है, तो मुझे कौन से स्टॉक लेना होगा? विल आई गो फॉर पॉलिसी बाजार और आई गो फॉर गुजरात फ्लोरो? बी, पॉलिसी बाजार। ओके, पॉलिसी भवन जी, पॉलिसी बाजार, पॉलिसी बाजार, पॉलिसी बाजार। ओके, आई एम पॉलिसी बाजार। ओके, आई एम ऑल्सो पॉलिसी बाजार। ठीक है, तो मैं भी पॉलिसी बाजार में जाऊंगा। क्यों? द ओवरऑल ट्रेंड अप है, स्टॉक इज ट्रेंडिंग अप, इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम्स ड्राई हो गए थे, फिर वॉल्यूम भी थोड़ा आने लगा है। ठीक है, तो आई विल गो फॉर पॉलिसी बाजार। अगर ये दो स्टॉक में चुनना है तो मैं पॉलिसी बाजार में जाऊंगा। ठीक है, तो राइजिंग वेज किसी भी डायरेक्शन में, अपसाइड या डाउनसाइड, कोई भी डायरेक्शन में राइजिंग चैनल अपसाइड डाउनसाइड कोई भी डायरेक्शन में दे सकता है। सेम फॉलिंग चैनल भी आपका अपसाइड या डाउनसाइड कोई भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। ठीक है, तो इट हैज गिवन एन अपसाइड ब्रेकआउट एंड यू कैन सी द वॉल्यूम इज आल्सो वेरी गुड ऑन द ब्रेकआउट। ठीक है, तो ब्रेकआउट देने के बाद इट हैज रीटेस्टेड द लेवल, मतलब यहाँ पे गैप फिल किया है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, अपने बाय करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं होता तो आई थिंक आई विल गो फॉर अ बाय फॉर दिस स्टॉक। ठीक है, तो मैं सपोर्ट यहाँ पे अगर मैं लूंगा तो मैं इसके स्टॉप लॉस के नीचे अपना बाय, इस लो के नीचे मैं स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकता हूँ। अगर मुझे ब्रेकआउट में बाय करना है तो जब तक इसके ऊपर नहीं चलेगा प्राइस, मैं बाय नहीं करूंगा। अगर इसके ऊपर चलने लगे, दो सिनेरियो है, जब इसके ऊपर चलने लगे तो मैं बाय करूंगा। ठीक है, अभी मैं करंट लेवल में अगर मैं बाय कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आसपास आज ही मैं कल बाय करता हूँ मार्केट खुलने के बाद, तो मैं जस्ट इसके नीचे या यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस अपना इस पॉइंट 185 पॉइंट के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा के बाय कर लूंगा, तो मेरा रिस्क कम होगा। आइदर आई विल बाय हियर एंड मेंटेन अ स्टॉप लॉस दिस पॉइंट, और आई विल बाय अबव दिस लेवल ऑन ब्रेकआउट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल्केम ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद इट हैज गिवन सम करेक्शन एंड अगेन इट स्टार्टेड मूविंग अप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हाई को वायलेट नहीं किया था इस स्टॉक में, तो आपका ब्रेकआउट देने के बाद कॉल एक्टिव नहीं हुआ, वो आपका नीचे गया। नेक्स्ट डे जब यहाँ पे, इस दिन जब इस हाई के ऊपर जाना लगा, तो यहाँ पे आपको एंट्री लेना होगा। ठीक है, सो फ्लैट चैनल भी होता है, तो फ्लैट चैनल में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग, रेक्टेंगल ट्रायंगल पैटर्न भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि एक रेक्टेंगल के पैटर्न में बना हुआ है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, सो इसका भी टारगेट कैसे निकालेंगे, ये हाई और लो का डिफरेंस निकाल के अपने एड अप कर देंगे ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर टू गेट द हाई एंड लो ऑफ द स्टॉक। ठीक है, हाई एंड लो, सॉरी, टू गेट द टारगेट, ये हाई और ये लो, ये डिफरेंस को अपने निकालेंगे एंड विल एड अप टू द ब्रेकआउट पॉइंट टू गेट द टारगेट ऑफ द फ्लैट चैनल। ठीक है, स्टॉप लॉस जैसे मैंने आपको कहा था रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर रखिए। आप ब्रेकआउट्स के नीचे रख सकते हैं, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रख सकते हैं, आप ये जो प्रीवियस स्विंग लो था इसके नीचे रख सकते हैं, या फाइनल स्टॉप लॉस जो होगा वो अगर इसके नीचे बंद हो जाएगा तो आप वहां का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। How much percent according to you chart pattern works? See, it has been researched that chart patterns, ये अपना स्टॉकेज का नहीं है, जनरल 65 to 70% ये वर्क करता है। ठीक है, बट इसका जो सक्सेस रेशियो है डिपेंड्स ऑन यू एंड डिपेंड्स ऑन मी, हाउ यू आर यूटिलाइजिंग इट। अगर मैं अप ट्रेंडिंग मार्केट में अप ट्रेंडिंग स्टॉक खरीद रहा हूँ, बुलिश सेक्टर है, बुलिश पैटर्न है, बुलिश मार्केट है, और तो उसमें मेरा क्या होगा, हिट रेशियो ज्यादा होगा। अगर मैं बुलिश मार्केट में बेयरिश पैटर्न्स खेल रहा हूँ तो मेरा हिट रेशियो कम होगा। तो इट डिपेंड्स, तो दिस पैटर्न्स का सक्सेस रेट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर वर्किंग विद दिस पैटर्न। ठीक है, अब मुझे मेरे को दो पैटर्न मिला, एक बुलिश मिला, एक बेयरिश मिला। ठीक है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है, सपोज ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है और मुझे दो पैटर्न मिले, बुलिश भी बेयरिश भी, तो मैंने बुलिश पैटर्न में काम किया, बट ट्रेंड मार्केट का डाउन है, तो वो क्या होगा, और स्टॉक का पैटर्न फेल हो गया। राइट, पैटर्न फेल हो गया तो मेरे लिए वो काम नहीं किया, तो आई विल से दैट पैटर्न इज नॉट वर्किंग। बट जिन्होंने बुलिश बेयरिश ब्रेकआउट खेला होगा, बेयरिश ब्रेकडाउन खेला होगा, बेयरिश मार्केट था, सेक्टर बेयरिश था, स्टॉक ने बेयरिश ब्रेकडाउन दिया,
और मैंने भी बेयरिश ट्रेंड लिया, तो मैंने मेरा डाउनसाइड टारगेट अचीव हो गया, तो मेरे लिए वो पैटर्न वर्क किया. आई विल से दैट सक्सेस रेशियो इज वेरी गुड फॉर मी. बट दोज हु आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, उनके लिए क्या होगा? सक्सेस रेशियो 40% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है. तो हाउ यू आर यूटिलाइजिंग इट, हाउ यू आर अलाइनिंग द पैटर्न्स विद द ओवरऑल मार्केट कंडीशन, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि सक्सेस रेशियो क्या होगा. तो किसी के लिए सक्सेस रेशियो 70% हो सकता है सेम चार्ट पैटर्न्स में, किसी के लिए सक्सेस रेशियो 30% हो सकता है, डिपेंडिंग आप किस टाइम में ले रहे हैं, किस मार्केट कंडीशन में ले रहे हैं. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आई होप कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. माय फेवरेट पैटर्न, ओके, मेरा फेवरेट पैटर्न है डबल बॉटम डबल टॉप. ओके, ये पैटर्न्स है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी है, ठीक है. जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न इज आल्सो वेरी, बहुत अच्छा काम करता है. एंड डबल बॉटम डबल टॉप भी है, क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम होता है. आपका रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज्यादा होता है डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न में. मार्केट कंडीशन एप्लीकेबल टू चैनल, मार्केट कंडीशन इज एप्लीकेबल टू ऑल द पैटर्न्स. कोई भी पैटर्न में अगर बियरिश ट्रेंड है, डाउनसाइड ब्रेक डाउन दे रहा है, तो आप नीचे का खेलिए. अगर बुलिश ट्रेंड है और डाउनसाइड ब्रेक डाउन दे रहा है रेक्टेंगल का फ्लैट चैनल, तो आप अवॉइड कीजिए. ओके, हाई एंड लो डिफरेंस. तो हाई एंड लो डिफरेंस, तो दिस इज द हाई, ये हाई है, ठीक है. ये एक पॉइंट आप ले सकते हैं यहाँ पे हाई, ठीक है, आप ये पॉइंट ले सकते हैं हाई, और ये लो, ये रेक्टेंगल का हाई लो, ये जो डिफरेंस है इसका हाई. सपोज यहाँ पे मैं हाई देख रहा हूँ 275, तो 275 हाई है और इसका लो है 220, 220. ओके, तो मीन्स 55 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है. ओके, सो 55 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है. तो जो ब्रेकआउट पॉइंट है ये वाला, ठीक है, इस ब्रेकआउट पॉइंट पे अपने 55 रुपीज ऐड कर देंगे. तो ब्रेकआउट पॉइंट क्या था, अगर आपने इसमें देखेंगे 276, ठीक है. तो 276 प्लस 55 को ऐड करेंगे तो विल गेट द टारगेट. ओके, तो दिस इज फ्लैट चैनल. ठीक है, तो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द सेशन. होप यू हैव ऑल लाइक द सेशन. ठीक है, तो नेक्स्ट वीक ऑल्सो विल आई कंटिन्यू. इंडिविजुअल स्टॉक्स आई एम नॉट टेकिंग, विष्मा जी, ठीक है. आई एम जस्ट कीपिंग इट टू दी पैटर्न्स ओनली. ठीक है, for any individual stocks के लिए you can ask in the club, you will get the reply. Okay, thank you Sanjay ji for your feedback. Okay, thank you Mohan ji. Okay, thank you all for your feedbacks. Thank you very much. Okay, so I'm ending this session and meet you next. Thank you for all your good feedbacks. Thank you. Okay, so I'm ending this session. Okay.